ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस चैप्टर में मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था और हमने मुख्तलिफ मोल कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला यूज़ होते हैं वो पढ़े थे। आज की वीडियो में हम मोल और केमिकल इक्वेशन के दरमियान रिलेशन क्या है इसको पढ़ेंगे। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द मोल एंड केमिकल इक्वेशन। सो फर्स्ट बेटा आप लोग समझिए व्हाट इज़ मीन बाय केमिकल इक्वेशन। आप लोग डिफ़ाइन कैसे करोगे? केमिकल इक्वेशन को हम डिफ़ाइन जो करते हैं कि द symbolical representation of a chemical reaction. The symbolical representation of a chemical reaction is called chemical equation. The symbolical representation of a chemical reaction is called chemical equation. For example, हमारे साथ एक केमिकल रिएक्शन है। हम बोलते हैं आयरन और सल्फर आपस में कंबाइन होके जब हम हीट देते हैं ये आयरन सल्फाइड बनाते हैं। आयरन सल्फाइड, ये हमारे साथ केमिकल रिएक्शन है। अब अगर हम इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ दिस कंपाउंड, फॉर एग्जांपल इसके लिए सिंबल क्या है हमारे साथ? आयरन के लिए Fe प्लस, सल्फर के लिए क्या है? S और एरो, और ये हमारे साथ क्या है? आयरन सल्फाइड के लिए सिंबल FeS. This is called chemical equation. The symbolical representation of a chemical reaction is called chemical equation. The symbolical representation of a chemical reaction is called chemical equation. अब देखो बेटा, ये हमारे साथ क्या हुआ? chemical equation. बेटा in chemical equation the species on the right side, देखिए हमारे साथ right side है, so the species on right side इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। the species on the right side, जिस तरह के हमारे साथ यहाँ FeS है, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। while the species on the left side, the species on the left side like these are called reactants. इनको हम क्या बोलते हैं? reactants। जिस तरह के हमारे साथ यहाँ पे आयरन प्लस सल्फर, ये हमारे साथ रिएक्टेंट है। and the arrow always point from reactant toward product. the arrow always point from reactants toward product। ये हमारे साथ बेटा केमिकल इक्वेशन होता है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रिमेंबर, when the amount of reactant and product are equal, this will be called balance chemical equation. देखिए what is mean by balance chemical equation. Remember, in mole calculation or stoichiometry we will use balanced chemical equation. So what is mean by balanced chemical equation? The equation having equal amount of reactants and product is called balanced chemical equation. The equation in which the amount of reactant and product are equal. For example, iron plus sulfur, यही वाला chemical equation, it react to give iron sulfide. अब यहाँ पे देखिए 1 mole of this and 1 mole of this,
and it's giving 1 mole of this. It's mean 56 ग्राम of this. आयरन का 1 मोल, इसका मॉलिक्यूलर मास हमारे साथ क्या है 56 ग्राम, और इसका सल्फर का 32 ग्राम। तो आप उसमें रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बनाता है जिसका मास हमारे साथ 88 ग्राम होता है। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर ऑलवेज सेम इन द केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। So balance chemical equation have a relation for mole. कैसा relation? Remember, a balanced chemical equation give us a conversion factor. क्या होता है? A balance equation give a conversion factor. Give conversion factor. कन्वर्जन फैक्टर, और कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ करके हम मोल कैलकुलेशन करेंगे या स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे। सो यूजिंग कन्वर्जन फैक्टर, रिमेंबर कन्वर्जन फैक्टर, स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन आर डन, या मोल कैलकुलेशन are done. So रिलेशन क्या हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशन और मोल का, कि सारे कैलकुलेशन मोल के या स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे होते हैं। सो इट्स मीन कि ऑल स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन these are done, all stoichiometric calculation are done on the base of balance chemical equation, on balance equation. So that is why there is a relation between the balance equation and the mole. So what type of stoichiometric calculation are done? Remember, there are 4 types of stoichiometric calculation. 4 types of stoichiometric calculation. बेटा हमारे साथ स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन, that is called mole conversion. That is called mole conversion. Mole conversion. The second stoichiometric calculation, that is called mole mass conversion. And the third stoichiometric calculation, that is mass conversion. That is mass conversion. और लास्ट स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन जो हम यूज़ करेंगे गैसेस में, that is मोल वॉल्यूम कन्वर्जन. मोल वॉल्यूम कन्वर्जन, ये वाला हम गैसेस में करते हैं क्योंकि गैसेस में हम वॉल्यूम की बात करते हैं. सो लुक एट मी, all these calculation are done on the base of conversion factor. So the question is, what is conversion factor? So बेटा आप लोग समझने की कोशिश करें, what is mean by conversion factor? Conversion factor असल में होता क्या है? This is a ratio of coefficient found from balance equation. This is a ratio of coefficient found in balance equation. In balance equation that is used to enter convert
reactants and products. To enter convert reactants and product. बेटा हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कैलकुलेशन जो है वो इस कन्वर्जन फैक्टर की बेस पे करेंगे. फॉर एग्जांपल आप लोग देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन दे रिएक्ट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड. सो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स, 1 मोल of each reactants give 1 mole of product. आप लोग देखें कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इसके साथ जो ये लिखा हुआ होता है, ये जो फॉर एग्जांपल 1 और 2 और वट एवर, दिस आर कॉल्ड कोएफिशिएंट. जब 1 हो तो हम लिखते नहीं है, 1 इज़ नॉट रिटन, इट्स अंडरस्टूड. These are called coefficient. So the coefficient, a ratio of coefficient. यहाँ पे रेशो क्या हुआ, 1 mole give 1 mole. So conversion factor क्या हुआ, conversion factor. यहाँ पे हमारे साथ conversion factor 1:1 हुआ. इसका मतलब क्या हुआ कि for 1 mole of the product we need 1 mole of the reactants. सो ये हमारे साथ एक फैक्टर यहाँ पे बनी, एक रेशो बनी. अगर मैं आपको बता दूँ आई नीड 5 मोल्स, यू विल इंक्रीज 5 मोल बिकॉज 1:1 है. So if I need 10 moles, you will increase the reactant into 10 moles. So this is called conversion factor, a ratio of coefficient found in the balance equation that is used for interconversion of reactants and product. This is called conversion factor, जो कि हम सारी स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन में ये कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के बुक में एग्जाम्पल नंबर 1.5 जो है ये मोल कन्वर्जन पे दिया गया है. सो आप लोग देखिए स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमारे साथ जो फर्स्ट स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन है वो है मोल कन्वर्जन. फर्स्ट स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन दैट इज मोल कन्वर्जन. बेटा इसका मतलब क्या है मोल कन्वर्जन? इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट का मोल दिया गया होगा और आपने उससे प्रोडक्ट का मोल मालूम करना होगा, या रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का दिया गया होगा और आपने रिएक्टेंट का मालूम करना है. सो इन सच केसेस the mole of one species, reactant or product, the moles of one species that is reactant or product is given, and using the conversion factor the mole of the other species is calculated. This is called mole conversion. Using conversion factor the mole of other species is calculated. जिस तरह के आप लोगों के बुक में एग्जाम्पल नंबर 1.5 को बेटा आप लोग देखें. एग्जाम्पल नंबर 1.5 एग्जाम्पल नंबर 1.5 में आप लोगों को केमिकल रिएक्शन दिया गया है बेटा कि 2KClO4 2KClO3 पोटाशियम परक्लोरेट, जब आप इसको हीट करते हैं it will decompose into potassium chloride plus O2, 2 potassium chloride in order to balance, and 3 molecules of oxygen, 3 moles of oxygen. आपको रिएक्शन दिया गया है
आपको रिक्वायर्ड क्या है, क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड। द क्वेश्चन इज how many moles of oxygen can be formed by taking how many moles of oxygen can be formed by taking 10 moles of KClO3। आप लोग क्वेश्चन की समझ आ गई बेटा कि अगर आप लोग 10 मोल्स KClO3 ले लें तो ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे। तो आप लोग केमिकल रिएक्शन की तरफ आ जाए। फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन वी हैव द कन्वर्जन फैक्टर बेटा। फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन कंसंट्रेट करें बेटा, 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड हमें 3 मोल्स दे रहे हैं। कहाँ से पता चला? फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन। 3 मोल्स ऑफ KClO3 is given, 2 moles of KClO3 is given 3 moles of oxygen, 3 moles of oxygen। तो अगर हम इसका 10 मोल ले लें तो कितना ऑक्सीजन देगा? दिस इज़ द क्वेश्चन। मोल कन्वर्जन, रिएक्टेंट का मोल्स दिया है, प्रोडक्ट का मालूम करना है। सो इफ 10 मोल्स ऑफ KClO3 तो ये हमारे साथ कितने मोल्स बनाएगा? तो आप लोग देखें बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे साथ हो जाएगा, दिस विल बी 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15 मोल्स। सो इट्स मीन बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ KClO3 वी विल गेट 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कैलकुलेशन हमने कहाँ से की? कन्वर्जन फैक्टर से। कन्वर्जन फैक्टर क्या है बेटा? 2:3। So using the conversion factor we will do all such calculation। बेटा आप लोगों के चैप्टर में प्रैक्टिस एग्जाम्पल आप लोगों को एक दिया गया है। बेटा ये सारी कैलकुलेशन मोल कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन, मास कन्वर्जन, इसी तरह इस कन्वर्जन फैक्टर पे जो है हम करेंगे। सो आप लोग देखें, आप लोगों को एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया गया है आपके बुक में। प्रैक्टिस प्रॉब्लम दैट इज़ 1.4। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया गया है? रिएक्शन दिया गया, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6O2 एंड दिस इज गिवन 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O। हमारे पास ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्लूकोज जो हमारे पास रिस्पायरेशन प्रोसेस में होता है। ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्लूकोज फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी इनसाइड आवर बॉडी। तो आप देखिए बेटा, आपसे क्या रिक्वायर्ड है कि इफ 2 मोल ऑफ ग्लूकोज इज टेकन, क्वेश्चन ये है कि इफ 2 मोल्स of C6H12O6 is taken, then how many moles of कार्बन डाइऑक्साइड? बेटा आपको क्वेश्चन की समझ आ गई कि नहीं कि अगर हम 2 मोल्स इसके ले लें तो उसके कितने बनेंगे? फ्रॉम इक्वेशन है, उसी तरह बेटा आप लोगों ने करना है फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन। बेटा आप लोगों ने खुद करना है, मैं जस्ट समझा रहा हूँ। फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन 1 मोल आपके पास कितना दे रहा है? 6 मोल। तो बेटा 2 मोल्स आपके पास कितना देगा? सो सिंपल, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 12 मोल्स।
of carbon dioxide. So beta all the mole conversion will be done by this conversion factor. देखो यहाँ पे हमारे साथ conversion factor क्या हुआ 1:6. So बेटा conversion factor को यूज़ करते हुए हम next जो है वो करेंगे मोल मास conversion.